اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، بلکہ آپ کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور موت کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ویدوں کے بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ بہونی میں بیاتی تنی جنمانی توشت چار جن، شری کرشن جی نے کہا ارجن کا ارجن، دنیا کے اندر کوئی ایسا زمانہ نہیں رہا جس میں ہم نہ رہے اور تم نہ رہے، بھلے ہی ہمیں جو علم ہے تمہیں نہیں۔ یعنی اس چیز کو اس درشٹی سے دیکھا جائے تو یہ منتر کا ترجمہ پھر بیٹھتا ہے کہ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں انسان آتے رہے، دنیا میں انسان پیدا ہوتے رہے، انسان کی نظر میں رہتے رہے، لیکن موت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا ہے، ایک انسان کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو تیاری کر لینی چاہیے آخرت کی۔ اور آئی کہیں گے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، موت بلا شبہ آئے گی، اور قیامت آپ کے سامنے ہو کر رہیں گے، قیامت آئے گے۔ یہ آئیے ہم اس چیز کو اس درشٹی سے دیکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی، انسان کو انسان کا ہی جنم ملے گا، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں میں جو آواگمن بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان جیسا عمل کرے گا اس کو اسی دنیا میں دوسرے جنموں میں پھیرا جائے گا، ان کے یونی کو، ان کے روح کو دوسرے روح میں پرویش کیا جائے گا۔ اگر کوئی رشوت کھائے تو کتے کا جنم ملے گا، کسی نے کسی کو لاٹھی سے مارا تو اس کو کتے کا جنم، کوئی اگر میرے پیارے ساتھیوں چوری کرے بلی کا جنم، اس طرح ان کی کتاب میں آواگمن ہے۔ لیکن ہاں وہ بھی مانتے کہ انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، وہ بھی مانتے کہ ایشور نے، اللہ نے کسی کے لیے جنت، کسی کے لیے سور، کسی کے لیے نرک یہ بنائے رکھے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اس چیز کو غور سے سمجھنا چاہیے اور یہ قیامت کے بارے میں اشتعال نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت ہوں گے یا نہیں، یہ تو انسان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ہم نے باپ کی زبان سے یہی بات سن کے آ رہے ہیں، دادا کی زبان سے یہی بات سن کے آ رہے ہیں کہ قیامت ہوگی، لیکن کہاں ہو رہی ہے؟ ہمارے دادا اس دنیا سے گزر گئے، قیامت نہیں ہوئی، باپ بھی اس دنیا سے گزر گئے، کہاں قیامت ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ آیت نازل کرتا ہے، یسألونک عن الساعة ایان مرساہا۔ اے نبی، جو لوگ قیامت کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کرتے، بحث کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، ان کو قیامت ضرور ہو، ان کے سامنے ان کو دوبارہ وجود میں لائے، دوبارہ موت دی جائے، دوبارہ ان کو موت بھی آئیں گے اور دوبارہ ان کو زندہ بھی کیے جائیں گے۔ آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو انسانی تسلسل چلا آ رہا ہے یہی بہتر ہے، تو اللہ کو قیامت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ قیامت کیوں کریں گے؟ آئیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک آدمی چل رہا ہے، ایک فقیر آدمی چل رہا ہے، راستے میں کسی آدمی نے اس کو پکڑا اور روکا اور کہا، آئے فقیر آدمی، اچھا یہ بتاؤ، آئے انسان، اچھا یہ بتاؤ اگر اللہ ہے تو کہاں ہے؟ آئے فقیر آدمی یہ بتاؤ کہ تم جو یہ کہتے ہو اور یہ نعرہ لگاتے ہو، یہ تقریر کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیں گے، ابلیس کو سزا دیں گے، اور ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، لہذا جہنم میں تو آگ ہی کا عذاب ہوں گے، جس کو آگ سے بنایا گیا ہو اس کو آگ سے کیا سزا ہوگی؟ یعنی ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور جہنم میں اس کی سزا جو ہے، اس کا عذاب جو ہے آگ ہی ہے، لہذا آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی، آگ کو آگ سے کیا سزا ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، پھر یہ کہا انسان کو اللہ نے پیدا اس دنیا میں کیا ہے، یہی تو انسانی تسلسل صحیح ہے، پھر قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے فقیر نے یہ سوالات سنے، ایک ڈھیلا اٹھایا، ایک پتھر اٹھایا، ایک ڈھیلا اٹھایا، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس آدمی کے منہ پر مار دیا۔ جیسے مارا وہ آدمی گمانی تھانہ گئے اور جا کر فوراً اس کے اوپر شکایت نالش کر دی، فوراً مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا اس کو بلایا جائے، اس فقیر کو بلایا گیا، اے فقیر تم اس کو مارا ہے، ڈھیلا مارا ہے؟ کہا میں نے ڈھیلا مارا ہے۔ کیوں مارا؟ تمہیں تو اس نے نہیں مارا؟ کہا نہیں اس نے ہمیں نہیں مارا، میں نے اس کو مارا نہیں، میں نے تو اس کے سوالات کا جواب دیا۔ اچھا
हाँ, मैंने सवाल का जवाब दिया है। कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से भी देना चाहिए। इसने मुझे सवालात किया और मैंने इसको जवाबात दिए हैं, मैंने इसको जवाब दिए। अच्छा वो कैसे? अल्लाह है तो कहा है, और कैसे समझे कि अल्लाह है? मैंने इसको जवाब ढेला मार के दिया। मैंने इसको ढेला मारा है। ये तो वक्ती तौर पर साबित किया जा सकता है कि ढेला मारा है, लेकिन अभी दिखाओ कि मैंने ढेला कहाँ मारा है। इसके अंदर चोट है। उसी तरह अल्लाह ताला है, उसी तरह अल्लाह ताला है, गोया कि उसके अंदर ये चोट बतला रहे जो उसको ढेला मारा गया है। और उसने ये भी सवाल किया, अल्लाह ने इब्लीस को आग से पैदा किया है तो जहन्नम की आग से उनको क्या तकलीफ होगी? अच्छा ये बताओ, इंसान को भी अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, मैंने उसको मिट्टी का ढेला ही मारा है, तो मिट्टी के ढेले से क्या तकलीफ हुई होगी? अच्छा बात तो सही है, तुमने जवाब ही दिया है। जिस तरह एक इंसान को मिट्टी के ढेला मारने से तकलीफ होती है, सजा होती है, हालांकि इंसान को तो मिट्टी से बनाए गए, उसी तरह इब्लीस को भी आग से पैदा किया गया है, लेकिन जहन्नम में जो आग होंगे उससे उनको सजा जरूर मिलेगी, उनसे उनको तकलीफ होगी। अच्छा तीसरा जवाब दो। उन्होंने कहा तीसरा जवाब ये है, इन्होंने सवाल किया मुकदमा दायर करने की क्या जरूरत थी? इन्होंने सवाल किया, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इंसान ये तसलसल जारी रखता ही काफी था, लेकिन क्या जरूरत थी कयामत करने की? इसलिए मैंने उसको ढेला मारा और जवाब दिया, और इन्होंने शिकायत लेकर आपके पास आए। अच्छा ये बताओ, इन्होंने जब आपके पास शिकायत लेकर आए, दुनिया में कितने गरीब ऐसे लोग होंगे जिनको दुनिया में पूरा इंसाफ नहीं मिलता है, जिनमें दुनिया में किसी इंसान को पूरा बदला नहीं मिलता है। अल्लाह इसीलिए तो कहता है कि मैं इन इंसाफ को पूरा करने के लिए कयामत का दिन मुकर्रर कर रखा हूँ, मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मैं मालिक हूँ। दुनिया में किसी इंसान ने किसी को थप्पड़ मारा है, दुनिया के अंदर कोई ऐसी सर्जरी नहीं, कोई ऐसी मशीन नहीं जिसको मापा जा सके और उसको भी उसी के बदले में उसी तरह थप्पड़ मारा जा सके। इसलिए दुनिया में अगर किसी ने किसी को 100 कत्ल किया है, किसी ने किसी 100 आदमी को मारा है, अदालत यही कहेगी उसको भी कत्ल कर दिया जाए, पूरा इंसाफ नहीं मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है इसी इंसाफ को पूरा करने के लिए, इसी चीज को पूरा करने के लिए मैं कयामत करूंगा, और हमारे यहाँ सबसे अटल फैसला होंगे, लोगों को पूरा बदला दिया जाएगा। आइए कयामत के सिलसिले में अग्नि नयासु पथारे आसमा विश्वानी देव वयुनान बेउदार वो ईश्वर जो कयामत के दिन के मालिक होंगे। लिहाजा इसका मतलब ये है दुनिया में किसी को अगर इंसाफ ना मिलाओ या फिर मिलाओ तो उसके अंदर कमियां रह गई है, तो इसी चीज को पूरा करने के लिए, इसी चीज को तकमील करने के लिए अल्लाह कयामत करेगा। और आए लोगों जो इस दुनिया में रूठ चुके हो, अपने रब से बेसहा, अपने रब से रूठ चुके हो और हिम्मत हार गए हो कि दुनिया में हमें इंसाफ नहीं मिलता है, अच्छे आदमी बनकर क्या फायदा? बिल्कुल नाशुक्री और नाउम्मीदी ना हो। अल्लाह फरमाता है मैं इसी चीज को पूरी करने के लिए तो कयामत करूंगा। और हाँ, आपने सोचा कि हम तो बड़े हैं, किसी गरीब को मारा, किसी गरीब को पाया और थप्पड़ मार दिया, रास्ते में कोई चल रहे, हम उनकी बैंक लूट लिए, हम उनको कत्ल कर दिए, हमारी इस दुनिया में पकड़ नहीं हुई, हम बच गए। नहीं, अल्लाह फरमाता है मेरी पकड़ बहुत सख्त है और हम तो लोगों को पकड़ के ही रहेंगे, मेरी पकड़ सख्त है। मुसलमानों जो ये समझता है कि हमने किसी को कर भाग गया या बच गया दुनिया की अदालतों से, हमारे बाप वकील है, हमारे बाप जज है, हम तो बच जाएंगे, दुनिया की नजर से, दुनिया की आंखों से बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह की आंखों से, अल्लाह की नजर से नहीं बच सकते हैं। अब देख लीजिए सूरत हाल, झारखंड के अंदर तबरेज अंसारी को मार दिया गया, पीट कर मार दिया गया, दुनिया की अदालतों ने फैसला सुना दिया, उसको बरी कर दिया गया। ये समझते हैं खुशी से हम तो बरी हो गए, हम तो पाक हो गए, हम तो कामयाब हो गए, लेकिन कयामत के दिन पकड़े जाएंगे। दिल्ली के अंदर कारी हो गए, इसको मार दिया गया, ये समझते कि हमको तो जमानत मिल गए, हमको तो रिहा मिल गए, लेकिन कयामत में जरूर उसके पकड़ होंगे। इसलिए कोई ये सोचता है कि हम किसी इंसान को मारेंगे, तो एक बात याद रखना,
मुसलमानों, हदीस ये कहती है कि सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा कौमुम माहुम सियार, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुर्सी पर बिठाए जाएंगे, सत्ता पर बिठाए जाएंगे और सत्ता पर बैठकर उनके पास प्रशासन की ताकत होंगे, उनके पास लाठी होंगे, उनके पास सारी चीजें होंगे, हथियार होंगे। अगर उन्होंने लोगों के साथ अच्छा फैसला किया है तो ईश्वर कहता है कि मैं उसको अर्श की साए के नीचे जगह दूंगा। लेकिन उन्होंने अगर अपने लाठी का गलत इस्तेमाल किया है, उन्होंने अगर अपने लाठी का गलत यूज किया है, अल्लाह फरमाता है जहन्नम के दो गिरोह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम के दो गिरोह होंगे, उन्हीं दो गिरोह में से एक गिरोह में उनका भी नाम शुमार होगा। आए लोगों, अगर कोई, हम ये नहीं कहते कि कौन सा धर्म सही है, उन्हीं के धर्म के मुताबिक बयान कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू हो, कोई अगर उसके जात बिरादरी में हो, दुनिया में किसी इंसान से रिश्वत खाता है, दुनिया में किसी के ऊपर गलत और नाजायज थप्पड़ मारता है, बेकसूर को मारता है, जय श्री राम के नारे लगाकर मारते हैं अपने पास अथॉरिटी, अपने पास ताकत होने के बल, तो ईश्वर कहता है कि उसको कुत्ते का जन्म मिलेगा। और हमारी यह हदीस ये कहती है कि अगर उसके पास ताकत रहने के बावजूद गलत इस्तेमाल किया तो जहन्नम के गिरोह में शामिल होंगे। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि जहन्नम के इन गिरोह में शामिल नहीं होंगे और इस चीज से बचकर जन्नत की तरफ माइल होंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि जहां आपको सही हक कर, जहां आपको आपके ही पक्ष में फैसला करना वहां कीजिए, जहां आपको लग रहा है कि हमें दूसरे के पक्ष में करना चाहिए वहां कीजिए। ये नहीं देखिए इंसाफ के मामले में कि कौन मेरा भाई है, कौन मेरा कौन मेरे वालिद है, आप इंसाफ सही तरीके से कीजिए। इसी चीज का नाम तो इस्लाम, इसी चीज का नाम तो अमन व अमान। इस्लाम तो हमेशा ये सिखाता है कि आप हमेशा लोगों को भाईचारा का पैगाम दीजिए, हमेशा लोगों को अखलाक से जुड़िए, हमेशा लोगों के दरमियान रिश्ता कायम रखिए। इस्लाम तो ये कहता है, और इस्लाम ये कहता है अगर आपके सामने आपके इलाके में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और हिंदू भाई की तादाद कम है, इसका मतलब ये नहीं आप उसके खिलाफ फैसला करें। और हाँ, अगर कहीं हिंदू भाई ज्यादा है तो उनको भी, उनकी किताब ये नहीं कहती है कि मुसलमान के ऊपर गलत फैसला किया जाए। वो राम जिनके नारे लगाकर, जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो राम ये कहते हैं जिसने किसी इंसान को नाजायज थप्पड़ मारा है, ईश्वर उसको कभी नहीं बख्शेगा, ईश्वर उसको कभी नहीं बख्शेगा। उसके दरमियान इंसानियत निकल जाती है, इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। उसी तरह तो कुरान कहता है जिसने किसी एक इंसान की जान बचाए उसने पूरे इंसान की जान बचाए। गोया के कोई ऐसा धर्म नहीं जो हमें और आपको लड़ा रहा है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं, चाहे किसी भी कौम से हो, हमें और आपको को लड़ाता है। और अफसोस इस बात की है कि हम बड़े बड़े पोस्ट पर कायम है, सत्ते पर आ गए हैं, लेकिन हमें सही इल्म नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, सही जानकारी नहीं है। आओ मैं आपको जो कर्नाटका के मामले में हिजाब का मुद्दा उठाया जा रहा है, और इलेक्शन के मौके पर ये हिजाब का मुद्दा उठाया जाता है, इलेक्शन के मौके पर ये आवाज उठनी चाहिए, इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। जो बेरोजगार है उसको रोजी कैसे मिले, जो बेचारा गरीब है उसके घर में खाना कैसे पहुंचे, जो किसान है उनके खेत में अनाज, उनके खेत में खाद पदार्थ कैसे पहुंचे, इस मुद्दे पर आवाज उठनी चाहिए। लेकिन जैसे इलेक्शन का मौका आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, यही धर्म के मामले में लोगों को लड़ाया जाता है, मुसलमान हिंदू कराया जाता है, मस्जिद मंदिर कराए जाते हैं। और ये फैसला आपके सामने 15 मार्च को रिजल्ट आ चुका है, हाई कोर्ट कर्नाटका ने आपके सामने फैसला रख दिया है कि इस्लाम में हिजाब कोई अनिवार्य नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। मुझे अफसोस इस पर नहीं कि उन्होंने कुरान की तालीमात को नहीं जाना, मुझे अफसोस इस बात पर है कि उन्होंने संविधान को भी ठुकराया।